ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਨਟੀਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੇਜ਼ਿੰਗ ਈਸਟਵਰਡ ਆਫ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਗਸ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੜਾ ਟੂ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੇਤਾਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਏਅਰਟੈਲ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਏਅਰਟੈਲ ਸੇਫ ਪੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੋਡਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾ FX ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਸੁੰਦਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁੰਦਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ JSW ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JSW ਸਟੀਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ SEBI ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। SEBI ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਤਿਆਗੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਔਰ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇਸਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ DRDO ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਵੇ ਹੈ? ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਲਵੇ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP DRDO ਦੇ ਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। G ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫॉर ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜੀਓ ਹੈਜ਼ਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, यानी कि अगर किसी तरीके की डिजास्टर वगैरह आती है तो उसके टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा DRDO।
नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान द्वारा शाहीन थ्री एक मिसाइल, एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज है 2750 किलोमीटर दी। तो किसने टेस्ट फाइट की है? पाकिस्तान ने इसनूं टेस्ट फाइट किया। नेक्स्ट है सैकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का जो सैकेंड एडिशन है ये नीति आयोग जारी कर दे। सिंपली पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यह इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। दूसरा एडिशन जारी किया गया। करनाटका ने पहली बार भी टॉप किया सी, दूसरी बार भी इसनूं टॉप किया है। दूसरे प्लेस ते महाराष्ट्र और थर्ड प्लेस ते तमिलनाडु रहे। पंजाब पूछा जाएगा तो पंजाब 10वें नंबर पर है इस इंडेक्स के विच। मेजर स्टेट्स की कैटेगरी बिहार की गल करते हैं तो बिहार इस दे विच आखिरी नंबर पर। नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी दे विच हिली एरियाज या नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी दे विच हिमाचल प्रदेश टॉप ते है और मेघालय लास्ट नंबर ते है। इसी तरीके नाल यूटीज़ की कैटेगरी दे विच दिल्ली टॉप ते है और लक्षद्वीप लास्ट नंबर ते है। इसी दे नाल याद रखांगे चंडीगढ़ है जो सैकेंड नंबर थे यूटीज़ की कैटेगरी दे विच। चंडीगढ़ सैकेंड नंबर यूटीज़ की कैटेगरी दे विच। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान दे नाल सोलर एनर्जी के कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है जी। उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंद है, करंसी सोम चलती है। ताशकंद तो सूँ याद आता है सैकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, इन्हों की डैथ हुई सी ताशकंद दे विच। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा याद रखांगे लाल बहादुर शास्त्री की डैथ कित्थे हुई सी? ताशकंद दे विच हुई सी और सैकेंड प्राइम मिनिस्टर सीगे इंडिया के। क्रिकेटर लतीश, अच्छा अगर गल करते ना डैथ एनिवर्सरी हुणे कुछ टाइम पहले ही लंघ के गई है, जनवरी के ही लंघ के गई है, तो कमेंट बॉक्स के इन्हों की डैथ एनिवर्सरी दसनी है। क्रिकेटर लतीश मलिंगा जो कि श्रीलंका तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिटायरमेंट लीती है फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम जो कि नागपुर दे विच है बाला साहेब ठाकरे के उत्ते रखा गया। बाला साहेब ठाकरे के उत्ते इन्होंने इंटरनेशनल जू का नाम रखे। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा ने जो इन्होंने अवोलोकाना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ठीक है, अपने लिए डायरैक्ट इंपोर्टेंट बनेगा कि अवोलोकाना सॉफ्टवेयर केड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर ने, इन्होंने मनोहर पारीकर एक बुक रिलीज की है, मनोहर पारीकर ऑफ द रिकॉर्ड रिटन बाय वामन सुभा प्रभु द्वारा इस बुक नूं लिखा गया। त्रिपुरा द्वारा 43rd कोकबोरोक डे 19 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ ग्रीन पीस एंड वाइट ब्रिंजल्स और वाइट ब्रिंजल्स की पहली कंसाइनमेंट वाराणसी तो डिलीवर की गई है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी तो शारजा UAE तो। ठीक है जी, ये पहली बार डायरैक्ट कहांगे एक्सपोर्ट की गई है, इस करके इंपॉर्टेंट बनेगा। यूपी के ही चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया झांसी दे विच स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरुआत की है 24th हुनर हाट की कित्थे अवध शिल्पग्राम लखनऊ दे विच। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा पहला फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल
रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल इसकी शुरुआत किन्ना ने की है? तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किए गए ने शिवराजपुर बीच जो कि देवभूमि द्वारका दे विच है, इसनूं की किया जाएगा? इंटरनैशनल लैवल बीच दे विच कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। इस तो इलावा शिवराजपुर बीच बारे याद रखांगे कि यह 8 इंडियन बीचीज़ दे विचों एक सी जिन्होंने रिसेंटली ब्लू टैग दिता गया सी। गुजरात गवर्नमेंट द्वारा ही महिला उत्कर्ष योजना नूं भी शुरू कर दिता गया। महिला उत्कर्ष योजना यानी कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी के 54वें 354th बर्थ एनिवर्सरी नूं कमैमोरेट दी गई, होमेज दी गई। तो 20 जनवरी नूं यह ऑबजर्व की गई सी। गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु ने। क्वेश्चन वैसे तो रेयर चांस है इस तरीके का क्वेश्चन, पर मे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखांगे 10वें गुरु सीगे गुरु तेग बहादुर जी के सन से। चलो ये तो हर एक नूं पता होएगा। इस तो इलावा खालसा पंथ की स्थापना इन्हां द्वारा की गई सी। प्राइम मिनिस्टर पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह द्वारा घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन की शुरुआत की गई है। यूनियन कैबिनेट गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5200 करोड़ तकरीबन 5200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस दे लई? 800 मेगावाट रैटले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट के लिए जो कि चेनाब रिवर के उत्ते। हालांकि जी अमाउंट है इस 51% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 49% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, डायरैक्टली याद रखेंगे कि 850 मेगावाट का रैटले हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट कित्थे लगाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर दे विच भी किश्तवाड़ दे विच, और किहड़ी रिवर दे उत्ते? तो याद रखांगे चेनाब रिवर दे। ठीक है जी। नैक्सट पंजाबी दे विच कंटेंट अवेलेबल है, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। चलते हैं आप स्टैटिक पोर्शन दे विच डिस्कस करांगे आप अपनी एक्सरसाइजिज दे विच। सब तो इंपोर्टेंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर दे नाल बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज। अग्नि वॉरियर इंडिया सिंगापुर दी अग्नि वॉरियर। सिम्बैक्स भी इंडिया और सिंगापुर दी। ठीक है जी। इसी दे नाल स्लाइनैक्स एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका की एक्सरसाइज है, और इंबैक्स एक्सरसाइज है जो इंडिया म्यांमार की एक्सरसाइज है। ठीक है जी। क्वेश्चन एक्सरसाइजिज के विचों डायरैक्ट पूछे जाते हैं। अगर आप रिसेंट की गल करते हैं फ्रांस के बारे आप डिस्कस की है कि फ्रांस की वैसे शक्ति वरुण और गरुड़ एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है फ्रांस के नाल। पर एक होर एक्सरसाइज ऑबजर्व की जा रही है, आप डिस्कस की थी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कित्थे? जोधपुर राजस्थान के कंडक्ट की जा रही है। ठीक है जी। कल तक परफॉर्म की जाएगी। इस तो इलावा एक एक्सरसाइज आज भी डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं सैशन सब तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ ऑब्जर्व्ड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी। 21 जनवरी नूं 21 जनवरी नूं स्टेटहुड डे ऑबजर्व किया। किहड़ी स्टेट्स ने? तो ऑल ऑफ दीज, यानी कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तिन्ना द्वारा स्टेटहुड डे तिन्ना नूं बनाया गया सी। कदों बनाया गया सी? तिन्ना नूं 1972 दे विच बनाया गया सी। ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है। इस तो इलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्हां नूं किन्नवां फाउंडेशन डे? तो इन्हां दा 49th फाउंडेशन डे ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी। जिस तरीके नाल आपां कहा सी कि 50th बांग्लादेश है जो 1971 दे विच बनाया गया सी, इसकी 50th इंडिपेंडेंस डे आ रही है। इसी तरीके नाल 1972 49th फाउंडेशन डे कहांगे या स्टेटहुड डे तीनों स्टेट्स मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का ऑबजर्व किया गया 21 जनवरी नूं। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर दे विच एक फैसटिवल याद रखांगे लिली फैसटिवल इंपोर्टेंट रहेगा। मेघालय दे विच चैरी ब्लूजम फैसटिवल याद रखांगे, इंटरनेशनल चैरी ब्लूजम फैसटिवल। त्रिपुरा दे विच अगर आप गल करते हैं तो फैसटिवल याद रख सकते हैं हॉर्नबिल ऑर्गेनाइज किया गया सी त्रिपुरा दे विच।
ठीक है। इस तो इलावा अगर इन्हां दे इंपोर्टेंट बन सकदियां ने कैपिटल चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ठीक है। बेसिकली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स नूं लोग स्किप कर देंदे ने, क्वेश्चन इत्थों पूछा जाता है, क्वेश्चन इत्थे दे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पूछे जाते हैं। तो मणिपुर कैपिटल की है? मणिपुर कैपिटल इंफॉल है। चीफ मिनिस्टर मणिपुर दे एन बिरेन सिंह और गवर्नर की गल करते हैं, गवर्नर ने इत्थे दे नजमा हैप्तुल्ला। मेघालय कैपिटल शिलोंग है, हर एक नूं पता है। इत्थे चैरी ब्लॉसम फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तो इलावा मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा और गवर्नर बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने सत्यपाल मलिक अपॉइंट किए गए सी गवर्नर मेघालय के, ठीक है। इस तो पहले गोवा के गवर्नर होंगे सी और उस तो पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर होंगे सी सत्यपाल मलिक। त्रिपुरा की गल करते हैं, कैपिटल अगरतला। चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब चीफ मिनिस्टर ने, और अगर गवर्नर की गल करते हैं तो रमेश बायस इत्थे दे गवर्नर, ठीक है जी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज 124th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस। आप डिस्कस किया कुछ दिन पहले कि गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई गई कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 125 साल कदों पूरे हो रहे हैं? 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ पूरे हो रहे हैं। तो इस दे ਲਈ कमेटी बनाई गई है। कमेटी के हैड पहले अमित शाह सीगे, उस तो बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड बना दिते गए, ठीक है। तो 125वीं अगर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ आएगी तो 124वीं 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो सुभाष चंद्र बोस की 124वीं बर्थ एनिवर्सरी आई 23 जनवरी ਨੂੰ, यानी कि अज के दिन, ठीक है। तो पराक्रम दिवस अनाउंस किया गया कि इस दिन नूं हर साल पराक्रम दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है जी। इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा आप डिस्कस कर चुके हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के उत्ते एक बस टर्मीनल बनाया जा रहा है उड़ीसा के विच, ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा। बस टर्मीनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के उत्ते। म्यूजियम बनाया जा रहा है विक्टोरिया मैमोरीयल के नज़दीक वैस्ट बंगाल के विच, ठीक है। इस तो इलावा आप डिस्कस कर चुके हैं, इस तो इलावा अगर आप डिस्कस कर चुके हैं मेजर हार्ट ब्रिज याद रखांगे जॉय हिंद रीनेम किया गया सी। कल डिस्कस किया कि ट्रेन का नाम कालका टू जी ट्रेन है उस ट्रेन का नाम की रखा गया हावड़ा टू कालका का नेताजी एक्सप्रैस, ठीक है। इफैक्ट ने जेडे सारे जिन्ने भी नेम्स इन्हों के नाम के उत्ते चेंज किए गए हैं इंपोर्टेंट बननगे, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कुछ चीज़ां कहांगे कि अज के दिन भी की जाएगियां, ठीक है। इनॉग्रेट वगैरह की जाएगियां, कुछ स्कीम्स हो सकता है लॉन्च की जान, तो इन्हों के बारे आप डिस्कस कर लाँगे अगे, ठीक है। इस तो इलावा 24 जनवरी नूं भी एक इंपोर्टेंट डे है, ठीक है। इसी के रिलेटेड डे जोड़े आप है डिस्कस करांगे कल के दिन। इस तो इलावा 25 जनवरी नूं भी एक इंपोर्टेंट डे है, उसके बारे भी आप डिस्कस करांगे, ठीक है। चाहो तो दोनों के आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स में दस सकते हो, लेकिन आप कल और परसों के सैशन के इन्हों डिस्कस करांगे। कल परसों नहीं कहांगी, संडे है कल, तो डिस्कस करांगे मंडे नूं। नेक्स्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सिस विल कंडक्ट अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज की गल की सी तो कवच एक्सरसाइज है जो यह इंडियन आर्म्ड फोर्सिस द्वारा यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इस पार्टिसिपेट कर रही है, और प्लस अगर गल करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी इस पार्टिसिपेट कर रही है। तो इन्होंने मिल के इंडियन आर्म्ड फोर्सिस ने कवच नाम की एक्सरसाइज कित्थे कंडक्ट करेगी ये, तो फर्स्ट एंड सैकेंड ऑप्शन अंडेमान सी एंड बे ऑफ बंगाल, अंडेमान सी एंड बे ऑफ बंगाल दे विच इस एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है जी। याद रखांगे कवच एक्सरसाइज है, कवच की है पूछा जा सकता है डायरैक्टली कि कवच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक एयरक्राफ्ट है, एक शील्ड है, क्योंकि कवच अगर आप शील्ड के तरीके कह सकते हैं तो हो सकता है इसका आंसर पूछ लिया जाए, और ड्रोन भी ऑप्शन के हो सकता है। तो कवच की है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सिस प्ले करनगी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ 15 ਜਨਵਰੀ। ਨੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ। एयर फोर्स 8 अक्तूबर और कोस्ट गार्ड 1 फरवरी ਨੂੰ इंडियन कोस्ट गार्ड का डे ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इन्हों के चीफ पूछ ले जाते हैं इंडियन आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवाने, इंडियन नेवी के चीफ करणवीर सिंह, इंडियन एयर फोर्स के चीफ RK सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस तो इलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ की अगर आप गल करते हैं तो इन्हों के चीफ ने के नटराजन। ठीक है जी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बन गए, याद रखा। अच्छा, एक इंडियन एयरफोर्स के पायलट का नाम याद रखा, पहले भी डिस्कस किया अपने, भावना कांत फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट बन रहे हैं जोड़े कि रिपब्लिक डे परेड के फाइटर पायलट उड़ानगे। ठीक है। नेक्स्ट है हू हैज़ बिकम मैक्सीमम गोल स्कोरर ऑफ फुटबॉल। पहले भी इस न्यूज़ में आप डिस्कस किया हुआ है, तकरीबन 2 बार यह न्यूज़ आप डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन्हों द्वारा जो 758 गोल्स किए गए, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़िया पेले का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़िया। ये सैकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए सी। ठीक है जी। इन्हों के गोल होए 759, तो यह बराबर आ गए जोसफ बीकन के बराबर आ गए और फर्स्ट गोल स्कोरर बन गए। ठीक है। हुण इन्होंने 760 कर ले ने, यानी कि यह सब तो हाईएस्ट बन चुके हैं, पहले नंबर पर आ गए हैं। ठीक है। इत्थे इन्हों का टाई होया सी 759 के नाल जोसफ बीकन के नाल। जोसफ बीकन बेसिकली जो ऑस्ट्रिया तो बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हुण क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिहड़े 760 गोल्स के नाल फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं, यानी कि अपना ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन मैक्सीमम गोल स्कोरर ऑफ फुटबॉल। कंट्री पूछी जाएगी तो पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं, पोर्तुगीज फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है जी। अच्छा, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रिसेंटली इन्हों गोल्डन फूट अवार्ड दिता गया सी, इंपोर्टेंट रहेगा गोल्डन बूट अवार्ड। ठीक है। इस तो इलावा फुटबॉलर ऑफ द डिकेड फुटबॉल द्वारा जोड़े अवार्ड दिते गए सी, फुटबॉलर ऑफ द डिकेड, हालांकि फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की को दिता गया सी। आप डिस्कस किया सी रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो कि पोलैंड तो बिलोंग करते सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉलर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिता गया सी। इस तो इलावा फीफा डिस्कस कर लें। फीफा इंपोर्टेंट रहेगा 2022 के कतर के होस्ट किया जा रहा है। कतर फीफा 2026 का जो फीफा है इसनों USA, कैनेडा और मैक्सीको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड कप 22 और 26 के वर्ल्ड कप दोनों इंपोर्टेंट बन गए, याद रखेंगे। ठीक है जी। इस तो इलावा अच्छा इंडिया फीफा का एक इवेंट इंडिया भी होस्ट करेगा, हालांकि इंडिया ने 2020 के उसनों होस्ट करना सी, पोस्टपोन किया गया 21 के लिए, बाद 22 के लिए। हुण इंडिया वो इवेंट नूं 22 के होस्ट करेगा। ठीक है। तो इवेंट केड़ा है वो? ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन दे देना कि अंडर 17 है, अंडर 19 है, और अच्छा अंडर 17 का मैन है या वूमेन है, उसी तरीके नाल अंडर 19 का मैन है या वूमेन है। ठीक है। 4 इंपोर्टेंट कहांगे कि स्पोर्ट्स इवेंट, 4 के वेन्यू दसने ने कमेंट बॉक्स के विच। आपां कई बार डिस्कस की है फीफा की पूरी लिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च ओरा क्रेडिट कार्ड विद हैल्थ एंड वैलनेस बेनिफिट। हैल्थ और वैलनेस बेनिफिट्स के नाल ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। किहड़े बैंक द्वारा? तो इसनूं एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सिस बैंक द्वारा ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। डायरैक्टली 1 लाइनर दे विच याद रखांगे। इस तो इलावा एक्सिस बैंक 1993 दे विच बनाया गया सी, मुंबई दे विच हैडकुआटर है। और अगर MD की गल करते हैं, इसके MD ने अमिताभ चौधरी। ठीक है। एक्सिस बैंक द्वारा लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट फैसिलिटी इंपोर्टेंट रहेगी। एक्सा डिजिटल बोर्ड असिस्टेंट भी एक्सिस बैंक द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं RBI रिलेटेड, हालांकि न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पर एक डिस्कस कर लेने कि RBI द्वारा कुछ किया गया। RBI द्वारा 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है।
ठीक है। बेसिकली ये लगाई जाती है बार बार किसी ना किसी बैंकिंग सैक्टर के उत्ते अगर किसी तरीके की रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किए जाते, इस करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस करके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो बैंक है वो एक इंटरनेशनल लैवल के बैंक है, ठीक है। इंडिया के ऑपरेशनस करता है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो कि लंडन का एक बैंक है, इसने इंडिया के जोड़े इसके ऑपरेशनस ने इंडिया के इसने अपनी ब्रांचिज ओपन की हुई ने, फॉरन बैंक है, तो इसनों 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है RBI ने फॉर डिले इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। बेसिकली फ्रॉड की रिपोर्ट मंगी गई सी इस बैंक तो RBI द्वारा, वो नहीं प्रोवाइड की गई टाइम के उत्ते, तो इस करके RBI ने इसके उत्ते 2 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, ठीक है जी। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा पर फिर भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरीके पूछ लिया जाए कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये कित्थे दा बेस्ड बैंक है, इसका हैडकुआटर मेन हैडकुआटर कित्थे दा लंडन दे विच, ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज MD ऑफ LIC। बेसिकली अगर सानू याद होवे आप तकरीबन 2 महीने पहले डिस्कस किया LIC के MD, LIC के जोड़े MD सीगे इन्हां दा नाम सिद्धार्थ मोहंती रिकमेंड कर दिता गया सी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। और मैंने उस टाइम कहा कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो अगर कोई नाम नॉमीनेट करता है तो 99.99% वही परसन नूं अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो वही गल है कि रिकमेंड 2 महीने पहले ही कर दिता गया सी, तो किन्हां नूं अपॉइंट किया गया, तो सिद्धार्थ मोहंती नूं ही अपॉइंट किया गया, ठीक है। उसी टाइम अपने याद करना शुरू कर दिता सी, हालांकि इन्हां दी टर्म है जी 1 फरवरी तो शुरू होएगी, ठीक है। इस तो इलावा अगर LIC की गल करते हैं तो LIC 1 सितंबर 1956 नूं बनाया गया सी, 1956 मुंबई दे विच हैडकुआटर है, ठीक है। और MD की अगर आप गल करते हैं तो LIC दे विच कोई सिंगल MD नहीं है, LIC दे विच MD की पोस्ट काफ़ी ने, पर चेयरमैन इक्को ही होंगे ने, तो चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा MR कुमार चेयरमैन ने LIC दे, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बनेगा, नाम याद रखांगे। इस तो इलावा ऑप्शनस भी ने, तो ऑप्शन के विच गोविंदा चिंतला राजू नाबार्ड के हैड ने, गोविंदा चिंतला राजू। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के हैड, HDFC बैंक के MD अपॉइंट किए गए सी शशिधर जगदीशन। अजय त्यागी सेबी के अपॉइंट किए गए सी अजय त्यागी। अश्वनी भाटिया SBI दे, ठीक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, HDFC बैंक सिंपल HDFC बैंक है। और नाबार्ड की गल करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया किनवें नंबर पर है, 4थे नंबर पर है। कि डिफेंस सैक्टर दे विच या कहांगे डिफेंस पावर दे विच इंडिया किनवें नंबर पर आता है वर्ल्ड दे विच, तो 4थे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर ऑबवियस है कि USA है, सेकंड नंबर पर रशिया है, और 3rd नंबर पर चाइना है, ठीक है जी। 4थे नंबर पर कौन अपना इंडिया ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू दे विच, ठीक है जी। सिंपल इस कोई डिटेल डिस्कस करने वाली गल नहीं है। इस तो इलावा USA रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो जरूर डिस्कस करेंगे आप अगे किसी क्वेश्चन दे विच। नेक्स्ट चलते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ये न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की पहली मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अपना क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर कित्थे है, तो यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर है ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच। यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच। यूरोपियन यूनियन दे विच 28 कंट्रीज़ होंदियां सी, हुण 27 ने। किहड़ी कंट्री ने एग्जिट किया, तो ब्रिटेन ने एग्जिट किया सी, याद रखांगे। इस तो इलावा यूरोपियन यूनियन का हैडकुआटर डिस्कस कर लिया ब्रुसल्स बेल्जियम दे विच। और यूरोपियन यूनियन है जो इसका एक बैंक भी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB, ये याद रखांगे। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हैडकुआटर भी
ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਲਗਾਰਡੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਲਗਾਰਡੇ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲਿਓਨ, ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲਿਓਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FAO ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫॉर एग्जांपल WHO ਹੋ ਗਿਆ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया WMO, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इस तो अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर भी है। इस तो अलावा अगर आप गल करते हैं ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप ISO सर्टिफिकेट डिस्कस करते होंगे तो वह भी उसका हैडकुआटर भी जेनेवा दे विच है ISO का। ठीक है, इसी तरीके नाल होर भी काफ़ी हैडकुआटर्स ने जेनेवा दे विच। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर भी जेनेवा दे विच है, याद रखांगे। नैक्सट है इंडिया हैज़ सेंट 1 मिलियन डोसेज ऑफ COVID-19 वैक्सीन एज ए गिफ्ट टू विच नेशन अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर। बेसिकली इंडिया डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ ਨੂੰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ डिस्कस किया होया। ठीक है, इस तो इलावा ਹੁਣ इंडिया ने नेपाल ਨੂੰ भी फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीन भेजी है। ठीक है, भूटान ਨੂੰ भेज चुका है, बांग्लादेश ਨੂੰ भेज चुका है। तो इसी तरीके नाल वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर नेपाल ਨੂੰ भी फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ वैक्सीन 1 मिलियन डोसेज भेजी जा रही है। ठीक है जी, याद रखांगे। अच्छा, नेपाल के बारे इस न्यूज़ तो इलावा कुछ पुरानी न्यूज़ अगर आप डिस्कस करिए तो एक तो याद रखांगे कल परसों डिस्कस की थी अपने K2 बारे कि K2 जो कि सैकेंड हाईएस्ट पीक है, इसनू विंटर दे विच क्लाइंब करने वाली पहली टीम केड़ी बनी है, नेपाल की टीम है। ठीक है, नेपाल अगर गल करते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट इन्होंने दसी सी कि 8848.86 मीटर, सिर्फ 0.86 बताया सी इन्होंने। इस तो इलावा अगर गल करते हैं नेपाल दे विच सार्क का हैडकुआटर है, सार्क साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, नेपाल के काठमांडू दे विच हैडकुआटर है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की गल करते हैं KP शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट की गल करते हैं विद्या देवी भंडारी इत्थे दी प्रेसिडेंट ने नेपाल की। ये सारे फैक्ट ने जिहड़े इंपोर्टेंट बननगे। पशुपति नाथ टैंपल नेपाल दे विच है, इस दे लई भी इंडिया ने ग्रांट प्रोवाइड की सी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑप्शनस की तो ऑप्शनस दे विच कुछ डिस्कस नहीं करांगे, सिंपली कमेंट बॉक्स दे विच चाहो तो तुसीं इन्हां रिलेटेड इन्हां दी कैपिटल और करंसी दस सकते हो। ठीक है, हालांकि पहले कई बार आप डिस्कस कीतियां ने कैपिटल्स और करंसीज, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील और बोलीविया वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बोलीविया के नाल और ब्राज़ील के नाल दोनों के नाल इंडिया ने COVID-19 के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, वैक्सीन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, दोनों को वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है, पुणे के हैडकुआटर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। कोविडशील्ड वैक्सीन का नाम है, याद रखांगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैड का नाम आधार पूनावाला है, आधार पूनावाला। ठीक है जी। विच कंट्री हैज़ रीजॉइंड द पैरिस क्लाइमेट डील, जी आप गल की सी कि एक न्यूज़ है USA रिलेटेड। USA दे विच आप डिस्कस किया सी कि 20 तारीख को 20 जनवरी को जो बिडन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो जो बिडन प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आंदे सार इन्होंने कहेंगे कि धमाका कर दिता, आंदे सार 3 इंपोर्टेंट एग्रीमेंट्स फाइनल कर दिते हैं। तो किहड़े एग्रीमेंट्स साइन किए हैं? तो पैरिस क्लाइमेट डील, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पैरिस क्लाइमेट डील दे विचों बाहर किया गया सी USA नूं, तो इन्होंने कहा कि असीं रीजॉइन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा
WHO ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ WHO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ USA ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। WHO ਦੇ ਵਿੱਚ USA ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਬਿਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡੀਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡੀਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ 196 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ COP21 ਉਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡੀਲ। ਇਸੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ COP25 ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ COP26 ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ISA ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਐਸਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। 87th ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ USA ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 33 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2691 ਕਰੋੜ टू ओवर 6 लाख बेनिफिशरीज अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण है जो ये 20 नवंबर 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ऑल टिल 2022 ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ यूपी ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ठीक है जी, याद रखेंगे। इस तो इलावा 2 इंपोर्टेंट न्यूज़ होर डिस्कस कर लेने। तो पहले 3-day पोर्ट्स रिव्यू मीटिंग, एक मीटिंग जारी ऑर्गेनाइज की गई है, पोर्ट रिव्यू मीटिंग चिंतन बैठक। मीटिंग का नाम रखा गया चिंतन बैठक। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? गुजरात दे विच। किसने चेयर की? तो ऑबवियस है पोर्ट्स मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मनसुख लाल मंडाविया, जो कि राज्य सभा MP ने गुजरात तो। इन्हों द्वारा इस मीटिंग ਨੂੰ ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है जी। इस तो इलावा तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ग्रेट मैमोरीयल बनाया जा रहा है फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਨਾ ਬੀਚ ਚੇन्नई ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 27 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਬਾਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ EK ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ, ठीक है जी। तो अगर आप गल करते हैं सैशन दे विच ਆਪਾਂ डिस्कस कर लिया ने न्यूज़। तो न्यूज़ अज अपनी घट सी, इस करके ਜਿਹੜੇ 5 ऑप्शनस ने स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ रिलेटेड कुछ पुरानी स्कीम्स डिस्कस कर लेने आ। तो यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा ਆਪਾਂ डिस्कस की सी युवा स्कीम, ठीक है, युवा स्कीम यूथ ਦੇ ਲਈ अप्रेंटिसशिप स्कीम सी जी युवा। इस तो इलावा कन्या सुमंगला योजना यूपी की है।
इस तो इलावा अगर गल करते हैं कौशल सतरंग कन्या सुमंगला, कौशल सतरंग योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक योजना, ठीक है। अच्छा रिसेंटली विरासत कैंपेन लॉन्च किया गया सी, ठीक है। किसान कल्याण स्कीम लॉन्च की गई सी फार्मर्स की इनकम नू डबल करने के लिए यूपी द्वारा। गुजरात दे विच दो इंपोर्टेंट डिस्कस करांगे, वहीली डिग्री योजना और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, वहीली डिग्री योजना और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। इस तो इलावा गुजरात दे विच जिन्नी भी न्यूज़ सीगियां आपां कुछ दिन पहले ही डिस्कस करके हटे हैं, इस करके दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक परसों ही डिस्कस किया सी आपां ने। तमिलनाडु डिस्कस कर लेने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम काफ़ी इंपोर्टेंट है, पूछी जा रही है एनटीपीसी के एग्जाम के पूछी गई है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। इस तो इलावा यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड, यूथ एडवोकेट वेलफेयर फंड भी तमिलनाडु द्वारा। बिहार की गल करते हैं जल जीवन योजना, जल जीवन हरियाली योजना इंपोर्टेंट है, प्यार का पौधा कैंपेन इंपोर्टेंट है बिहार का। चीफ मिनिस्टर बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं नीतीश कुमार, याद रखांगे। इस तो इलावा रेणु देवी का नाम याद रखांगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वूमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के। फागू चौहान इत्थे दे गवर्नर ने। उत्तराखंड की गल करते हैं, अगर उत्तराखंड के स्वरोजगार योजना याद रखांगे इंपोर्टेंट है, स्वरोजगार योजना कित्थे दी है, उत्तराखंड की, ठीक है। हंस जल धारा स्कीम भी कित्थे दी है, उत्तराखंड की। अच्छा उत्तराखंड के रिलेटेड एक आंसर देना है, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रिसेंटली उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा इत्थे एक लेक नू इनोग्रेट किया गया सी, एक नवी लेक उत्तराखंड के इनोग्रेट की गई, इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। कुछ बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल अंजू सरोवा नाम है लड़की का, ठीक है। एक लड़का है जो कई बार आंसर दिंदा है, लेकिन वो आंसर कमेंट बॉक्स के कदे भी नहीं दे रहा, ठीक है। अंजू सरोवा लड़की होगी, मनप्रीत कौर एक लड़की है। इस तो इलावा कुछ बच्चे ऐसे ने जिहड़े कि डेली क्लास दे विच आंदे ने, लेकिन वो आंसर नहीं दे रहे कमेंट बॉक्स दे विच, आंसर जरूर दिया करो कमेंट बॉक्स दे विच। रवि धालीवाल लड़का है, वो भी डेली क्लास दे विच हुंदा लेकिन आंसर नहीं दिंदा, कमेंट बॉक्स दे विच आंसर जरूर दिया करो जिन्ने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा, सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन, गुड बाय।